Very good evening to one and all present over here. Special thanks to Sonia ma'am too. Sonia, Yeah, she's thanks. always active. Yes. Sonia ma'am, she's getting connected. Thank you so much, Sonia ma'am, for joining. Her audio is connecting right Audio is now. connected. Anyways, so my dear audience, in fact, to each one of you, we are very thankful कि आप लोग आए और आपने अपना time spare किया to get this knowledge, wherein today we are going to show you the careers in the stream of non-STEM, right? Non-STEM में क्या-क्या career paths हो सकते हैं और 10th और +1 एक बहुत ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं. सो आज हम स्पेशली उन बच्चों की स्ट्रगल को एंड करने वाले हैं जो कि ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज है तो बहुत लिमिटेड सी स्ट्रीम्स हैं. We are going to tell you lot many stuff, so stay tuned with us. Sonia ma'am, I was thanking you for being there. Thank you so much. Okay, and my special thanks, of course, yes, goes to Preeti ma'am to be there on our platform. Thank you, Preeti ma'am. आपको बहुत बहुत thanks that you joined us again today इस webinar series में, because to spare such a so long time and that also from your busy schedule, that's really hats off to you. Preeti ma'am, if I just introduce to all of you, she's an international career coach, and not only this, वो global master trainer है AIEFK, that is All India Educator Forum, which we all just respect with our hearts. इसके अलावा she is also ICF certified clarity and parenting coach, lot many into her plates. प्रीति मैम, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ हमारे स्टेट वेबिनार सीरीज में. For our audience, I would like to tell them just once again कि हम अपनी सीरीज हिंदी में लेते हैं क्योंकि we really want कि इस रीजनल लैंग्वेज को हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करके ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों में लेके आ सके. तो जितनी भी हमारी कोशिश जहां तक भी रहेगी, we'll really go ahead with that. इससे पहले we'll just go ahead with our webinar today. I want all of you to just watch this wonderful video. I hope आप इसको जरूर कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे अपनी लाइफ से. Hello, ma'am. Where's the dress section? So I came last week, so I saw something. I just came to pick that up. Ma'am, we don't have any dresses today. Black t-shirt. Want to try? Please, ma'am. एक बार try तो कर लीजिए. So you don't have anything else except black t-shirts? बात है शादी तो शोरूम में खाली टी-शर्ट. भैया मरून ब्लेजर मेरे साइज में एक्सेल दिखा दीजिए. I'm looking for jeans, shirt. I have a voucher जो आज expire हो जाएगा. We've given our jeans for alteration yesterday. Yeah, I'm looking for white formal shirt. ब्लेजर्स तो अवेलेबल नहीं है. ब्लैक टी-शर्ट्स है सर. आज सिर्फ black t-shirt है. Black and just XL size. Yeah. क्यों? Why is that so? शर्ट दिखा दो, टाई दिखा दो. कल तो ये नहीं था, आज अचानक. तो ये वाउचर का मैं क्या करूंगी फिर? सर बट बहुत अच्छी टी-शर्ट. Once you try it, you will definitely buy it. जीन्स तो मिलेगा ना हमारा. मैम, जरूर आप t-shirt. हमें हमारी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि क्या हमें क्या करना चाहिए. भैया क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? नहीं लेनी ब्लैक टी-शर्ट. Where's the manager? Is your manager here? Can you call the manager? अपने मैनेजर को बुलाइए, प्लीज. He's the manager. For the whole store, I have only one. पहन सकते हैं. मीटिंग में मैं क्या करूँ? जो काली टी-शर्ट दिखी ना ये बिल्कुल नहीं. Let's go. नहीं नहीं सर. हेलो मैम. हेलो सर. सॉरी यू हैव टू फेस दिस बट आपको आपके कपड़ों में चॉइस नहीं मिली तो आपको इतना बुरा लगा. सोचिए ना मुझे कैसा लगता होगा जब मुझे मेरे करियर के लिए चॉइसेस नहीं मिलती. आई वांट टू बी अ गिटारिस्ट बट मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं वो करूँ. मेरे भैया को टेनिस बहुत पसंद था. मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया. One of my friend, he's very good in maths. So my parents are always comparing him with me. क्या सबको 90% आना जरूरी है? Does everyone need to be a topper? अगर मुझे डांस में इंटरेस्ट है तो मुझ पे 90% लाने का प्रेशर क्यों है? जैसे आप सबको हर चीज़ की चॉइसेस मिलती है, मुझे भी मेरे करियर के लिए चॉइसेस मिलनी चाहिए.
बात तो सही है तुम्हारी बेटा। आपको क्या बनना है बड़े होके? मुझे एक सिंगर और एक डायरेक्टर बनना है। So you will be a director who sings. That's amazing. रोहित शर्मा मुझे बहुत पसंद है। I like his pull shot. मुझे क्रिकेटर बनना था तो उस टाइम मुझे क्रिकेटर नहीं बनने दिया। आप वही बनना जो आप चाहते हो। It's okay. So this is all because of you? Yes. ये एक टी शर्ट सबको फिट नहीं होगी ना, तो सबको डॉक्टर बनना जरूरी है? Yes, my dear audience. I could see Sonia ma'am clapping. Awesome is not the word. It is just too good. Thank you, Sonia ma'am. Thank you so much. तो कितना अच्छा लगा हमें ये सब एक इन बॉर्नविटा बच्चों को देख के, बट उससे ज्यादा अच्छा लगा हमें उनके फीलिंग्स के बारे में सुन के, हाउ कनेक्टेड दे आर फॉर देयर फ्यूचर, हाउ वरिड दे आर फॉर देयर फ्यूचर। लेकिन हम क्या करते हैं, उनके सामने कोई चॉइसेस नहीं छोड़ते। Yes, actually we do it and it is really heart impinging. हम उनके सामने कुछ चॉइसेस नहीं छोड़ते और उनको सिर्फ गाइडेंस में दे देते हैं कि 1 way 2 way, that's it. तो आज हमारे साथ प्रीति मैम जुड़े हुए हैं बॉर्नविटा का एक बड़ा सारा पिटारा खोलने के लिए। प्रीति मैम, over to you. So we are waiting wherein we'll just go ahead with you, जहाँ पे आप हमें बहुत सारे और रास्ते दिखा सकें ताकि हम अपने बच्चों को और भी ज्यादा बेनिफिट कर सकें। थैंक यू पूजा, थैंक्स अ लॉट। और वाकई में ये जो हमने वीडियो देखा इसलिए टचिंग हो जाता है कि हम नोइंगली अननोइंगली ऐसा अपने बच्चों के साथ कर लेते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं वो दुश्मन हो जाते हैं। समटाइम्स दे जस्ट वांट टू ट्राई द हिट एंड ट्राई मेथड। जो उन्होंने किया है वही कर लो तो सेफ है, वरना पता नहीं क्या होगा। सो मैं यहाँ बच्चों को, जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया, आई एम नॉट सेइंग दैट गो अगेंस्ट योर पेरेंट, डोंट ओबे देम, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग यू शुड नो कैसे अपना पॉइंट रखना है अपने पेरेंट्स के सामने कि मुझे ये करना है। और मैं इसमें आपको एक चैलेंज लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं इसमें कितना सक्सेसफुल हो सकता हूँ। वो ऐसा आपके साथ इसलिए करते हैं क्योंकि वो या तो शायद उन्होंने वो करियर किया हुआ है, कई बार वो अपने ड्रीम्स आपको आपके थ्रू पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई पेरेंट नहीं है जो बच्चों को हर्ट करना चाहता है या उनसे ये ऐसा चाहता है कि नहीं नहीं ये मेरी बात नहीं सुन रहा है या इसको मेरी बात मानना चाहिए। वो ऐसा इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बच्चा स्ट्रगल ना करे, मेरा बच्चा एकदम एडवांस करे, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। एंड दीज आर द रीजन चिल्ड्रन, यू नीड टू टेल योर पेरेंट्स कि अब टाइम चेंज हो गया है, नाउ वी आर नॉट इन द सेम टाइम, द टाइम हैज टोटली चेंज्ड। अब इतने करियर ऑप्शंस हर एक फील्ड में है। जैसे पहले मैंने जो कल बताया था, स्टेम्स में सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही नहीं बनते हैं, हम स्टेम्स लेके हम बहुत सारी ऐसी अनयूजुअल फील्ड्स हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं। इन द सेम वे ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में भी इतना सारा एक्सपोजर है कि आप कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट से लेके अपना करियर को बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हो। तो लेट्स सी, आई विल बिगिन, आई विल शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मिनट। Pooja ma'am, can you see my screen? Okay. Yes, ma'am, yes. So first of all, हमेशा एक चीज याद रखो कि like Preeti ma'am, you can just do it on slideshow mode. Okay, okay, just a minute. Yeah, that's okay. I just want to tell, जो आज जिन भी बच्चों ने ज्वाइन किया है या उन पेरेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उन बच्चों को वो करने दीजिए जो वो लव करते हैं करने में, जो उनको मजा आता है करने में। और वो जब ये मजा करके जो भी काम करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये एक थॉट है, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। जो भी कर रहे हो उसको प्यार करो और हमेशा वही करने की कोशिश करो जिसको करने में मजा आता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें सक्सेस मिल जाती है। Today we are going to talk about non-STEM career opportunities. Non-STEM में कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज आता है, तो हम पहले कॉमर्स की बात करेंगे और फिर ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे।
लाइक सबसे पहले जो कॉमर्स में जैसे मैंने कल आपको स्ट्रीम्स में भी बताया था कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें एक इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट्स लेके आप क्या क्या कर सकते हो। अब ना कॉमर्स वाले बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि मैथ्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं ट्रूली स्पीकिंग आपको ये बताऊंगी कि कॉमर्स के साथ अगर आप मैथ्स लेते हो तो बहुत ज्यादा आपके पास करियर ऑप्शंस हैं। कुछ फील्ड्स अगर आप मैथ्स नहीं लेते हो तो कॉमर्स के साथ में आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, फिर उसमें आप ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हो, बट डिफिकल्टी आती है। इसलिए जो बच्चा इजीली मैथ्स में उसके लिए अच्छा है, उसको नंबर्स में अच्छा है, तो आई सजेस्ट कि उसको मैथ्स लेना चाहिए। अगर आपके साथ फोबिया है मैथ्स का, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम मैथ्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो आप बिल्कुल उसको ड्रॉप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स ही लेना है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैथ्स कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी क्या है, उसमें कितना स्कोप है। तो जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इसमें आप प्राइवेट फर्म्स में, बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर्स में, इंडिया में, अब्रॉड में कहीं पे भी वर्क कर सकते हो। करियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं बहुत सारी हैं। आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, आप स्टैटिस्टिशियंस बन सकते हो, स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हो, ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्टिक बन सकते हो, इंश्योरेंस अंडरराइटर्स बन सकते हो। जैसे कि मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, दीज आर द डोमेन्स आई एम टेलिंग। Under it there are many careers, so you need to explore in which career is suitable for you, because nowadays every career, हर एक career में उनका प्रोफाइल लिखा रहता है। तो आप एक बार जस्ट अपने रिसर्च करो, उसमें देखो कि ये आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं है। करियर पाथ क्या होते हैं इसमें, आप BA BSc, क्योंकि BA ह्यूमैनिटीज से भी आप इकोनॉमिक्स करते हो और आप BSc और कॉमर्स के साथ में भी इसमें जा सकते हो। And you can do the majors in economics followed by the master's degree. कॉमर्स विदाउट मैथ्स में बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स अगर आप ले रहे हो पर्टिकुलरली और आपको कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में लेना, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मैथ्स को डिमांड करती है। बट देयर आर सर्टेन मोर लाइक लोयोला कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, माउंट कार्मल कॉलेज, जहाँ पे आपको विदाउट मैथ्स भी एडमिशन मिलता है। कमिंग टू द एक्चुअल साइंस, ये बहुत इमर्जिंग करियर है लेकिन बहुत टफ भी है। इसके जो एग्जाम्स होते हैं बहुत टफ भी होते हैं। तो इसमें एक्चुअल साइंस बेसिकली फील्ड क्या होती है, ये एनालिसिस करती है रिस्क अक्रॉस, मतलब जो पॉलिसीज बनती है। जैसे आप देखते हो ना कि कोई भी चीज आती है तो उसकी एक पॉलिसी बनी रहती है, उस पर आप आई एग्री करके साइन कर देते हो। तो बेसिकली ये वर्क एक्चुअल साइंस का होता है। तो एक्चुअल साइंस में करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं। जनरल इंश्योरेंसेज होते हैं, लाइफ इंश्योरेंसेज होते हैं, एंटरप्राइज रिस्क होते हैं, एक्चुअरी कंसल्टिंग फर्म्स होती है, पेंशन, रिटायरमेंट, ये सारी जो पॉलिसीज बनती हैं बेसिकली एक्चुअल साइंस उसमें एक्चुअरियल्स इसमें वर्क करते हैं। अब इसका करियर जो पाथ होता है उसमें एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। आपने अगर वो क्लियर कर लिया तो उसके बाद 15 एग्जाम्स टोटल होते हैं IAI के में, कंडक्ट बाय IAI, और उसमें 4-5 आप एग्जाम्स अगर क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपका जॉब लग जाता है। फिर फर्दर आप उन एग्जाम्स को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन 4-5 एग्जाम्स अगर आपके अच्छे ग्रेड्स में पास हो गए तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाता है। और इसमें बेसिकली मैथ्स, जिस बच्चे ने मैथ्स लिया है उसके लिए ये बहुत सही है। अगर आपको मैथ्स का फोबिया है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चैलेंज ले लूंगा, बट दिस इज इमर्जिंग करियर, ठीक है इसमें। लेकिन अगर आप मैथ्स लेते हो तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल। अगर आप विदाउट मैथ्स जाते हो, कोई ऐसा बार नहीं है उसमें कि नहीं आप बिगर मैथ्स के एक्चुअल साइंस नहीं बन सकते हो, बट डेफिनेटली यू विल स्ट्रगल, क्योंकि मैथ्स इसमें काफी टफ होता है। मैनेजमेंट एक आता है। मैनेजमेंट में हम सब लोग जानते हैं मैनेजिंग करना, प्लानिंग करना, फोरकास्टिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रोसेस कराना है, कैसे सक्सेसफुल बनाना है, कैसे क्या रोल प्ले करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ऑपरेशंस क्या क्या करना है, क्या चीज इंप्लीमेंट करना है, HR, फाइनेंस, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में आती है। करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली स्ट्रेटेजीज, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारे इसमें FMCGs में आप वर्क कर सकते हो, प्राइवेट में वर्क कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर्स में वर्क कर सकते हो। स्पोर्ट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी फील्ड है जो कि आप साइकोलॉजी लेके और ह्यूमैनिटीज लेके भी आगे जा सकते हो। फैशन बिजनेस में जा सकते हो। तो मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा स्कोप है। और हियर यहाँ पे जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स की अगर बात करें तो लाइक सम इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे ये क्राइटेरिया रिक्वायर करते हैं, लाइक मैथमेटिक्स, BMS या फिर BBA कोर्सेज का, और कुछ कॉलेजेस विदाउट मैथ्स के भी एडमिशंस लेते हैं। इसका जो पाथ होता है वो BBA या BMS करके आप आगे बढ़ सकते हो। और फर्दर यू नीड टू डू द
MBA. MBA is required, so then only you will get the management degree. कमिंग टू द कॉमर्स, अब कॉमर्स एक अपने आप में एक इतना बड़ा एरिया है, बड़ी फील्ड है कि इसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंसिंग, टैक्सेशन, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये बहुत वास्ट एक डोमेन है और इसमें बहुत सारे करियर्स है और इसको आप विदाउट मैथ्स परस्यू कर सकते हो। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास मैथ्स होना चाहिए या आप कोई स्ट्रगल करोगे अगर आप मैथ्स नहीं ले सकते हो। इसमें बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आप आराम से इसमें वर्क कर सकते हो। एजुकेशन पाथ इसमें जो है बीकॉम करके, ऑनर्स करके, डिग्री यूजी लेवल पे आप अंडर ग्रेड्स लेवल पे आपने अगर बीकॉम कर लिया है ऑनर्स के साथ में, एक वो भी काम है। उसके बाद आप फर्दर एमकॉम कर लीजिए या फिर एमबीए कर लीजिए, दैट ऑल्सो वर्क्स विद दैट। सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं, सीए, सीएस, इसमें जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बनते हो तो उसके सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आप इसमें करके किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। कमिंग टू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये पहले भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करियर माना जाता था और डिग्निफाइड जॉब माना जाता था और अभी भी उसकी वैल्यू उतनी ही है। बट यार डेफिनेटली इसका एग्जाम बहुत टफ होता है और यू नीड टू क्लियर द ग्रुप्स इन दैट। फाउंडेशन करने के बाद ग्रुप्स में इसको क्लियर करना पड़ता है। मैथ्स बिल्कुल इसमें जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है दैट यू शुड हैव अ मैथ्स, बिकॉज़ विदाउट मैथ्स ऑल्सो यू कैन गो फॉर इट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी हम मेरे ख्याल से जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं सबको पता है और ये अट्रैक्ट करता है कि ये इसका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें कंडक्ट किया जाता है। यू नीड टू हैव अपॉर्चुनिटीज लाइक टैक्स कंसल्टेंसी, या आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट उसमें बैंकिंग में कोई बड़ा बजटिंग हैंडल कर सकते हो। और एजुकेशन जो पाथ है इसमें आफ्टर 12th यू नीड टू गिव एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, प्रोफेशनल टेस्ट होता है जिसको कि कॉम्पिटेंसी प्रोफेशनल टेस्ट बोला जाता है, सीपीटी, जो कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। यू नीड टू क्लियर दैट। उसको क्लियर करने के बाद आपको ग्रुप्स में, वन या और दोनों ग्रुप्स में आपको क्लियर करना पड़ता है। आफ्टर दैट 3 years आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, किसी CA या CA के अंडर में आपको काम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसके साथ में ही आपको अपना फाइनल जो ग्रुप है वो क्लियर करना पड़ता है। तो इट्स नॉट ईजी। आई विल सजेस्ट जिन बच्चों को मतलब डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं हो, मतलब वो एक साथ में लॉन्ग सिटिंग तक अगर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, डेफिनेटली दे कैन गो फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। You need to work hard just like a medical and engineering for the chartered accountancy. Statistics जो होता है इसमें फील्ड लाइक इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जैसे कि डेटास, जैसे हमने कल पढ़ा था बिग डेटा, तो इसमें बेसिकली डेटास को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और जो जितने भी न्यूमेरिकल डेटास होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स नहीं जा सकते हो, मैथ्स इज वेरी कंपलसरी फॉर दिस और ये उसी का पार्ट है, हमको पता है। तो फॉर दिस मैथ्स इज रिक्वायर्ड, विदाउट मैथ्स यू कैन नॉट गो फॉर दिस करियर। इसमें आप बिग डेटा, वही जैसे मैंने अभी बताया, बिग डेटा, मार्केट रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिसर्च एनालिसिस और रिस्क एनालिटिक्स के उसमें भी आप काम कर सकते हो। करियर पाथ आपका BA BSc दोनों से जा सकते हो, आप BSc से भी स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो या फिर BA से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप स्टैट्स में ही अंडर ग्रेजुएट कर सकते हो एंड देन यू हैव टू टेक अ PG डिग्री फॉर दैट। कमिंग टू द कंपनी सेक्रेटरी, अगेन ये भी जो है ये द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ये एग्जाम। इसमें भी करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती हैं। यू कैन वर्क एज अ लीगल, सेक्रेटरियल, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस फील्ड्स में काम कर सकते हो। यू कैन बिल्ड योर करियर इन दिस। डेफिनेटली यू हैव टू क्लियर द फाउंडेशन एग्जाम और फिर इसमें एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरीज होती है एग्जाम्स की। तो अगर आपने एग्जीक्यूटिव फाउंडेशन कर लिया है उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव करना पड़ता है और फिर 15 मंथ्स की प्रैक्टिस ट्रेनिंग आपको रिक्वायर्ड होती है। 15 मंथ्स इट इज कंपलसरी। ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम इट इज रिक्वायर्ड दैट यू विल ज्वाइन द कोई एसोसिएट मेंबर्स ऑफ द ICSI को ज्वाइन करना पड़ता है और आपको एक कंपनी सेक्रेटरी का डिजिग्नेशन, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं उनके आगे CA लग जाता है, ऐसे ही आपके आगे कंपनी सेक्रेटरी का टैग लग जाता है।
Coming to the Association of Chartered Certified Accountants, I hope many of you have not heard about it. ये मैंने कल भी बात करी थी, ACCA, I think streams में बात करी थी, ACCA करके ये कहलाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ACCA ही बुलाया जाता है एक्रोनिम में. This is equivalent to CA. अभी तक ऐसा होता था कि ये सिर्फ अब्रॉड में, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो हमारे इंडिया में सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स होते हैं, और अगर आप ACCA से कर रहे हो तो वो अब्रॉड में या यूरोप में इसको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, जस्ट लाइक अ चार्टर्ड. बट अभी इंडिया में भी ACCA को इक्विवेलेंट पोजीशन मिलने लग गई है, उसको इक्विवेलेंट कंपनीज हायर कर रही हैं जिनके पास ये डिग्री है, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट. थोड़ा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें पेपर्स ज्यादा होते हैं और ACCA में थोड़ा सा पेपर्स कम होते हैं और थोड़ा सा इजी मेथड होता है इसमें, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर डिफिकल्ट टू ACCA. इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन होता है लाइक बेसिकली तो अब्रॉड में होता है, बट अभी इंडिया में भी कुछ कंपनीज लेने लग गई हैं, लाइक डेलॉइट्स वगैरह जो है शायद ऑफर करने लग गए हैं इसमें ऑफर्स, बट हाँ अब्रॉड में इसके चांसेस ज्यादा हैं. और मैं आपको बता दूं 28 को मे बी पॉसिबल, आपके जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं विल बी हैविंग वन वेबिनार ऑन पर्टिकुलरली ऑन दिस ACCA एंड द एक्सपर्ट विल आल्सो बी देयर टू टॉक ऑन दैट. और उसके बाद इसमें जो करियर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप अकाउंटेंट या प्रोफेशनली एज अ ACCA, जैसे CA का टैग लग जाता है ऐसे ही आपके आगे लग जाता है ACCA का टैग, जो कि इक्विवेलेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है. और इसमें ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए कि आपको मैथ्स का बैकग्राउंड चाहिए. नाउ कमिंग टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगेन मैथ्स इसमें कुछ ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता है. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है, पहले इसको वर्क अकाउंटेंट्स के उससे भी बोला जाता था IC, अब इसको अंडर इंडियन दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के उसमें ही इसको कंडक्ट किया जाता है. करियर अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं इसमें आपको अकाउंट एज अ फाइनेंस कंसल्टिंग या ऑडिटिंग के फॉर्म में आप जा सकते हो, किसी भी एज अ कॉस्ट कंट्रोलर काम कर सकते हो, फाइनेंशियल कंट्रोलर काम कर सकते हो, फाइनेंस डायरेक्टर काम कर सकते हो आप इसमें. और जो उसके एजुकेशनल पाथ होते हैं इसमें आपको 20 एग्जाम्स, डिफरेंट एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, and at the 3 different levels like foundation, intermediate and final. So this is again the emerging one and it's also a difficult one, so you need to really study for these exams. एक स्टॉक ब्रोकिंग होता है जो सबको बहुत ज्यादा एक्साइट करता है. आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ कि उनको बहुत ज्यादा स्टॉक ब्रोकिंग में इंटरेस्ट आता है. बेसिकली जो कॉमर्स वाले होते हैं वो इसकी बात करते हैं आजकल बच्चे. तो यस, दिस इज अगेन द इमर्जिंग करियर विच यू कैन टेक इन. पेंशन फंड्स होते हैं, बैंक इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये सारा इसमें आप करियर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं. द करियर पाथ कैन बी, इट इज लाइक यू हैव टू गो फॉर द सर्टिफिकेशन कोर्स. तो बेसिकली ऐसे आपने ग्रेजुएशन किया, उसके साथ में आपने स्टॉक ब्रोकिंग का एक सर्टिफिकेशन कर लिया, तो देन इट्स अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर योर करियर. आप BCom BA कर लो और उसके साथ में एक सर्टिफिकेशन स्टॉक ब्रोकिंग का कोर्स कर लो, तो देन डेफिनेटली यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड यू विल बी हायर्ड बाय द कंपनीज. कमिंग टू द एंटरप्रेन्योरशिप, ये अगेन सबको पता है कि आजकल स्टार्टअप्स बहुत हो रहे हैं. बहुत सारे बच्चे किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, वो अपना खुद का स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं. और इसको अगर इसका आपके अंदर भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप है, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, तो यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव. आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए. और एक और इसमें बात है बेटा, बहुत आप स्टार्टअप हम लोग चालू तो कर देते हैं, बट उसके लिए आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है. बिकॉज आज आपने चालू करा कोई भी चीज, जरूरी नहीं आप आज ही सक्सेसफुल हो जाओ. मे बी आफ्टर 5 years. कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं तो उनको 7 years 8 years का भी स्ट्रगल होता है. बट येस, इट इज योर, ऐसा नहीं होता कि सक्सेसफुल नहीं होते, बट इट डिपेंड्स ऑन कि क्या स्टार्टअप आपने चालू करा है और कितना मार्केट का डिमांड है उस चीज के लिए. तो इफ यू आर लुकिंग फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, यू हैव टू रियली स्टडी द मार्केट ऑल्सो फॉर योर स्टार्टअप. एजुकेशन पाथ इसमें यही है, MBBA डिग्री और MBA डिग्री. आप MBA डिग्री कर लेते हो तो आप और ज्यादा उसमें स्किल्ड हो जाते हो. सो दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड दैट यू हैव अ MBA डिग्री इन द एंटरप्रेन्योरशिप ओनली. नाउ कमिंग टू द करियर अपॉर्चुनिटीज इन ह्यूमैनिटीज. हमेशा है ना, जब भी ह्यूमैनिटीज आता है ना, मुझे अपना भी टाइम याद आता है पूजा मैम, व्हेन आई गॉट गुड मार्क्स इन बायो, बट मेरे पापा ने मेरे को बोल दिया था कि हाँ ह्यूमैनिटीज ले लो. बट जो हमारे रिलेटिव्स थे
अरे ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, बच्ची ने ह्यूमैनिटीज लिया है, क्या फायदा हुआ ऐसा पढ़ के, कार्मल से पढ़ के क्या फायदा? उस टाइम पे कार्मल सीबीएसई स्कूल पढ़ना ही बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आप ऐसे तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ लेते, ह्यूमैनिटीज लेना था तो। बट ह्यूमैनिटीज में वाकई में पहले इतना स्कोप नहीं लोगों को समझ में आता था, अब इतना ज्यादा स्कोप है कि साइंस से भी ज्यादा ह्यूमैनिटीज में स्कोप है, क्योंकि इतने वास्ट सब्जेक्ट्स हैं इसमें। लेकिन मैम आजकल के टाइम में भी बच्चों में ये बहुत ज्यादा रहता है। अगर +2 के बाद बच्चे ह्यूमैनिटीज में आना भी चाहते हैं तो देयर पेयर नीड्स, दे ट्राई टू प्रेशराइज कि अच्छा पता नहीं क्या हो, मेडिकल नहीं हो पाया, कॉमर्स नहीं हो पाया, नॉन मेडिकल नहीं कर पाए, तो यू माइट बी नॉट वेरी इंटेलिजेंट। तो वो एक माइंडसेट आज भी लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि ह्यूमैनिटीज सिर्फ वो लेते हैं जिनको पढ़ना नहीं है, बट इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट। अभी एक रिसेंट एक काउंसलिंग हुआ था मैम मेरे साथ में, तो उससे पहले तो मुझे नहीं पता था, बच्चा 12th में था, तो उसका जब साइक्रोमेट्रिक हुआ तो उसका ह्यूमैनिटीज मतलब सोशल साइंसेस की तरफ उसका इंक्लिनेशन, उसका इंटरेस्ट और उसका जो एप्टीट्यूड था वो बहुत था। तो मैंने उससे पूछा कि कॉमर्स कैसे लिया जब बेटा आपका इंटरेस्ट इन सब चीजों में? तो कहते हैं अपने पापा मम्मी को देखने लग गया, कहते हैं इन लोगों ने फोर्स किया था, और अल्टीमेटली उस बच्चे का करियर, स्ट्रॉन्ग जो करियर आ रहा था वो सिर्फ उसमें ही आ रहा था, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उसको स्पोर्ट्स का इतना शौक था, लेकिन फादर मदर ने प्रेशर कर करके उसको कॉमर्स दिला दिया, उसने घिसे पिटे ग्रेड्स में वो कॉमर्स किया, एंड अल्टीमेटली वो वापस फिर वो अंडर ग्रेड्स में ह्यूमैनिटीज लेके आगे बढ़ रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी डिमांड क्या है। बट देखिए, एक तो यहाँ पे मैं गोइंग फर्दर, मैं एक चीज और यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि लाइक ये चीजें ना गॉड गिफ्टेड होती हैं, आप इनीट क्वालिटीज हैं वो, यू कैन नॉट डेवलप। आप किसी को किसी में इंटरेस्ट है तो वो वैसा ही रहेगा, फोर्स करके इंटरेस्ट चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सो लाइक कमिंग टू द ह्यूमैनिटीज, जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज, इस फील्ड, ये भी जो फील्ड है, ये आजकल हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और इन सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल इश्यूज को लेके बहुत सारे बातें चलती हैं, हर कंट्री में बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी लेवल। तो और एनजीओज इस पे वर्क कर रहे हैं। आप किसी भी एनजीओ को, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मींस एनजीओज ऐसे कोई छोटे छोटे एनजीओज नहीं होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े बड़े एनजीओज होते हैं जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे। WHO है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट लेवल में उसमें आप काउंसलिंग का काम कर सकते हो। सो दिस इज अगेन द वेरी गुड इमर्जिंग करियर। You need to take undergraduate level पे political science, history, psychology, social work या sociology में आपके पास undergrad के subjects होने चाहिए। आप liberal arts में भी अपने इन subjects को choose कर सकते हो। अगर आप liberal art college में जाते हो तो you can have a different subjects for this field. Coming to the habitat policy and practice, अभी बहुत सारे लोगों ने ये नहीं सुना होगा ना, अभी आजकल हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं ना, सब लाइवलीहुड एक्टिविटीज, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, ये एक बहुत इमर्जिंग, अगेन अभी जो मैं ह्यूमैनिटीज का बता रही हूँ ये इमर्जिंग करियर्स की ही बता रही हूँ, एंड देन विल टॉक अबाउट द कन्वेंशनल वंस जो कि हमको सबको पता रहता है थोड़ा बहुत। ये हम इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल कंपोजिशन में और अर्बन सोसाइटीज में इसकी स्टडी करते हैं, और इसमें कोर्सेज जो होते हैं इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, प्लानिंग, लॉ, सोशल साइंसेज, आप किसी भी फील्ड से इसमें जा सकते हो। हमारे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट इसको ऑफर करता है, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, बट वो मास्टर लेवल पे प्रोवाइड करता है, ओनली एट द मास्टर्स लेवल। तो आप, और एक ही है, आप इसमें अपने सब्जेक्ट्स लेके, ह्यूमैनिटीज से लेके, या उसमें ज्योग्राफी एक नेसेसरी सब्जेक्ट कर सकते हो, प्लानिंग वाला कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, लॉ ले सकते हो, एंड देन यू कैन डू द मास्टर्स फ्रॉम दिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। दिस इज ओनली वन इंस्टीट्यूट इन इंडिया विच प्रोवाइड्स दिस कोर्स। नाउ म्यूजियोलॉजी, हम म्यूजियम्स जाते हैं ना, कैसे वर्क होता है, कैसे ये सारा कुछ उसमें जो म्यूजियम्स में हम स्टडी करते हैं, टेक्निकली ट्रेन्ड पीपल होते हैं, उनको सब चीज की नॉलेज होती है। तो म्यूजियोलॉजी इज अगेन, government is very much active to conserve the things, okay, nowadays. So again it is emerging career. म्यूजियोलॉजिस्ट जो होते हैं, इसमें आपको डिग्री यू विल बी रिक्वायरिंग एज मींस एज अ करियर यू कैन टेक एज अ म्यूजियम डायरेक्टर, क्यूरेटर, you can become artist, you can become conservative specialist, you can become exhibit designer, you can become. So these are the good careers which are really emerging nowadays, and they are really dignified, and it's not means like more people are not aware about it, so there is more scope of it.
लाइक हिस्ट्री इसमें प्रेफरेबल बहुत है, क्योंकि यू शुड हैव अ डिटेल नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इट. अदरवाइज इसमें ह्यूमैनिटीज का, जैसे आप सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी से भी और आर्कियोलॉजी से भी ऑल्सो यू कैन परस्यू दिस करियर. जस्ट अ मिनट. ओके, नाउ इट इज अ कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी, हमने ये मैप देख रहे हैं, तो कैसे आज, पहले होता था ना कि पहले के कार्टोग्राफर्स होते थे वो 2D और 3D मैप्स पे, ग्लोबल उस पे ही काम करते थे. अभी क्या हो गया है, कार्टोग्राफर्स वर्क करते हैं जीपीएस सिस्टम पे. तो कार्टोग्राफर जॉब कभी भी जाता नहीं, क्योंकि रूट प्लानिंग, री रूटिंग जो आप लोग करते हो या जीपीएस जो चलता है, ये कार्टोग्राफर्स उसको डिजाइन करते हैं. So again, this is again the emerging course. इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और डिजाइन का कॉम्बिनेशन होता है. So ज्योग्राफी की स्किल्स होना बहुत जरूरी है इसमें. ज्योग्राफी becomes a main subject in it. इसमें जो करियर्स आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होता है, पब्लिक सर्वेइंग हो जाता है, और मीन्स लाइक जस्ट इमेजिन कि उसमें छोटे छोटे रूट्स का जो एक आइडिया होता है, यू शुड नो दैट द सर्वे ऑफ इट, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग, इट्स अ डिफिकल्ट, मीन्स लाइक लॉट ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन दिस करियर. So you need to be very intelligent and you need to be more resourceful person, और रिसर्च करने वाले होना चाहिए. आपका एक innate quality होना चाहिए कि आपको बहुत रिसर्च और एक्सपोजर की आदत हो. इसमें आप बैचलर डिग्री ज्योग्राफी में कर सकते हो, एंड देन अगेन एमएससी इन ज्योग्राफी इज आल्सो बीन सजेस्टेड फॉर गोइंग फॉर दिस करियर. नाउ कमिंग टू द दैट इज जर्नोटोलॉजी. किसी ने सुना है जर्नोटोलॉजी? एनीबॉडी हैज हर्ड अबाउट? नो. ओके, तो अब एजिंग होती है ना, एजिंग होती है. अब जब एज होने लग जाता है तो रिंकल्स आने लग जाते हैं, हेयर लॉस होने लग जाता है, मेमोरी लॉस होने लग जाता है, और साइकोलॉजिकल डिसीजेस भी होने लगते हैं. तो इसमें ये जो इसकी जो स्टडी करते हैं वो इन पे वर्क करते हैं. दे वर्क विद द ओल्ड पीपल्स, उस पे, उनके बिहेवियर चेंजेस पे, और उनको जो एक साइकोलॉजी बैकग्राउंड से भी जो उनको एक वीकनेस आने लग जाती है कि मैं ऐसा हो रहा हूँ, मैं वीक हो रहा हूँ, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, और या फिर उनको अपनी ही बॉडी चेंजेस से कई बार डिप्रेशन हो जाता है, तो वो उस पे वर्क करते हैं. तो करियर पाथ्स आर हेल्थ सेक्टर्स में हैं. इसमें एकेडमिक, रिसर्चिंग, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, इन सब में आप अपना वर्क कर सकते हो. एंड यू नीड साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क और होम साइंस. दीज आर द अंडर ग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट्स विच इज रिक्वायर्ड. Now rural studies and development, again this is very emerging career. इसमें हम रूरल, सभी को पता है कि हम कैसे आजकल डेवलप हो रहे हैं हमारे गांव, और उसमें कितना सारा कुछ न्यू सब उसमें होता जा रहा है. हम बहुत प्लान करने लग गए हैं अपने विलेजेस को, उसमें सब चीज होना चाहिए. कोऑपरेटिव सेक्टर्स उसमें काम करते हैं, एग्रीकल्चर बहुत एडवांस होना चाहिए. तो दिस इज एक्चुअली द रूरल स्टडीज एंड डेवलपमेंट, कि कैसे हम अपने गाँव को, अपने जिससे हम कनेक्टेड रहते हैं, हमारे रूट्स वहाँ पे, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, मेक देयर लाइफ फिजिबल. इसमें सोशल वर्क, साइकोलॉजी और हिस्ट्री शुड बी टेकन एज अ अंडर ग्रेजुएट लेवल. साइकोलॉजी, अगेन दिस इज समथिंग जो कि ये जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ज्यादा इमर्ज होकर आया है, और एक ही फील्ड में नहीं है. मतलब साइंसेस में भी है तो नॉन साइंसेस में भी है. लाइक साइंसेस की अगर आप बात करो तो फॉरेंसिक साइंस, ये सारी चीजें उसमें आ गई हैं. उसमें आप उसकी डिटेल्स साइंस की तरफ में पढ़ते हो. और साइकोलॉजी अगर आप ह्यूमैनिटीज से कनेक्ट करते हो तो आप उसमें एजुकेशन, या उसमें आप इंडस्ट्रियल कैसे बिहेवियर होता है, कैसे सोशल साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सब चीज पे आप वर्क करते हो. तो दिस इज अगेन द इमर्जिंग करियर. आपको अगर वाकई में बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ने का मन करता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे जानना है कि क्यों ऐसा, ये मतलब क्या थॉट रहा होगा किसी क्राइम करने पर उस बंदे का, उसका ऐसा कुछ मन करता हो आपका पढ़ने का, या आपको ऐसा पढ़ना अच्छा लगता हो कि बच्चों की क्या मेंटालिटी होती है, क्या साइकोलॉजी होती है, या क्लिनिकल थोड़ा सा साइंसेस की तरफ आ जाता है. स्पोर्ट्स में उनको कैसे मोटिवेट करते हैं. तो इसमें सिर्फ एक ही बिहेवियर नहीं होता, इसमें मोटिवेशन एंड एवरीथिंग कम्स इनटू. स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है, बहुत सारी फील्ड है इसमें जिसमें आप वर्क कर सकते हो. मीडिया है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन फॉरेंसिक साइंसेस भी अभी इमर्जिंग फील्ड होता है. ये फॉरेंसिक साइंस जो साइकोलॉजी है, ये अंडर क्लिनिकल साइकोलॉजी आता है. तो आपको ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जो आपको डायरेक्टली फॉरेंसिक साइकोलॉजी करवाता होगा बेसिकली ह्यूमैनिटीज में. तो लेकिन आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी से अगर आप करते हो तो फिर देन यू कैन वर्क इन डिफरेंट एरिया. सो एक क्लिनिकल साइकोलॉजी, एक मास्टर जिसको बोला जाता है, उसमें आप करके फिर देन यू कैन गो टू द फॉरेंसिक साइकोलॉजी.
काउंसलर्स बन सकते हैं, रिसर्च एनालिटिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, लाइफ कोचेस बन सकते हैं। अभी हम जैसे करियर, आपको करियर के बारे में बता रहे हैं, तो वैसे काउंसलर्स बन सकते हैं। सो देयर इज लॉट मच इनटू द साइकोलॉजी फील्ड। प्रीति मैम, आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन ओवर हियर। साइकोलॉजी को लेके जैसे आपने कहा, तो एमए साइकोलॉजी के बाद ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो जिनको करने की जरूरत है इफ वी आर टू गो इनटू दीज फील्ड्स, या जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी विल वर्क? नहीं, सी आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर साइकोलॉजी से करते हो तो आप उसमें फिर आपको मास्टर्स, जैसे हम मास्टर्स करते हैं ना एक स्पेसिफिक फील्ड को लेके, तो आप मास्टर्स कर रहे हो, देन यू आर एबल टू टेक दैट पर्टिकुलर फील्ड। लेकिन जैसे कि हम लोग जैसे मेरा कोई साइकोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, बट आई हैव डन माय स्पेशलाइजेशन इन देन करियर, तो फिर वो हमने एक अलग से कोर्स किया। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी से कर रहे हो, देन यू हैव टू डू इन द मास्टर्स इन सम पर्टिकुलर फील्ड। लाइक आपका मन है स्पिरिचुअल में जाना है, तो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी से आप मास्टर्स कर रहे हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी से आप मास्टर्स कर रहे हो, ऐसा एक पर्टिकुलर फील्ड लेके आप मास्टर्स करोगे, देन देयर इज नो नीड फॉर द एक्स्ट्रा। हाँ, इफ यू वांट टू gain some others means expertise in some other field, then definitely the certification courses will work. Okay. Coming to the law, तो लॉयर्स सबको पता है ना कि अभी सिर्फ लॉयर ऐसा नहीं कि काला कोट पहन लिया और बस बैठे हुए हैं, बहुत सारे बैठे हुए हैं ऐसा। लॉयर का काम सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है। लॉयर एक मींस ऐसा प्रोफेशन है जो कि डिग्निफाइड भी है, और बहुत सारी कंपनीज आजकल हायर करती हैं। आप जस्ट इमेजिन करो, इतनी सारी लीगल पॉलिसीज बनती है ना, और कॉर्पोरेट में, ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे छोटे, अगर मैं अपनी कोई कंपनी डालूंगी तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किसी एक एडवोकेट को हायर करना है, उसको सारे लीगल प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्या मैं पेपर साइन कर रही हूँ, मैं जिस पे टिक कर रही हूँ उसका कोई अलग मीनिंग तो नहीं जा रहा है। सो ये लॉयर्स जो होते हैं ये कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं, लीगल सर्विस में, प्राइवेट कंपनीज में भी काम करते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जो लीगल एडवाइजर्स को एज जो कि लॉ डिग्री होती है एज अ लीगल एडवाइजर अपॉइंट करते हैं। देन मीन्स इसमें आपको ग्रेजुएट होना है। ओके, यू कैन गो विद अपने ह्यूमैनिटीज से अपना लॉ से अपना ह्यूमैनिटीज अंडर ग्रेड्स कर सकते हो, और देन यू कैन टेक द मास्टर्स डिग्री। आप टैक्स लॉ आगे मास्टर्स में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड ले सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे वर्क कर सकते हो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पे वर्क कर सकते हो, सिविल लॉ में या क्रिमिनल लॉ में भी आप उसमें वर्क कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, आपको प्राइवेट कंपनी में वर्क करना है या पब्लिक सेक्टर में जाना है, दैट इज टोटली योर कॉल। हिस्ट्री, अब ये जो मैं बात कर रही हूँ ये हम सबको पता है, तो ये एक सब्जेक्ट है, ये एक डोमेन है अंडर विच देयर आर मेनी करियर्स। तो अगर आपने हिस्ट्री से एमए किया हुआ है, हिस्ट्री से आपने मास्टर्स डिग्री लिया हुआ है, तो देन आप एक पहले तो आप हिस्टोरियन बन जाते हो। अब हिस्ट्री में भी बहुत सारे सब एरियाज होते हैं ना, तो देन यू कैन वर्क एज अ, आप म्यूजियोलॉजी जो हमने देखा उसमें आपका वर्क कर सकते हो, एक्टिविस्ट बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, एक एनालिस्ट बन सकते हो, और रिसर्च आगे कर सकते हो। तो ऑल दीज फील्ड्स आर ओनली कम्स विद द हिस्ट्री। आर्कियोलॉजी, जैसे आर्कियोलॉजी आपने देखा ना, ये आज यहाँ पे ये बहुत खुदाई हुई तो वहां पे ये मंदिर निकला या ये मूर्ति निकली, तो दिस इज अ वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। इसमें आपको आर्कियोलॉजी में ही डिग्री करना पड़ता है। आर्कियोलॉजी इज अ सब्जेक्ट इन विच यू नीड टू टेक अ डिग्री ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स एंड देन यू कैन गो फॉर द मास्टर्स ऑल्सो। इसमें आपको मिस्टिक और एपिग्राफिस्ट की स्टडी में अगर आपको स्पेशली जाना है, लाइक कॉइन्स की या ओल्ड करेंसी के बारे में स्टडी करना है, तो ये पर्टिकुलर फील्ड्स होती हैं जिसमें आपको एक स्पेशलाइजेशन लेना है मास्टर्स डिग्री के थ्रू। सो देन यू कैन गो इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही आपने सिर्फ आर्कियोलॉजी से अंडरग्रेड्स किया है, देन ऑल्सो यू कैन वर्क इन द म्यूजियम्स और एज एन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑल्सो। Political sciences and international relations, this is something which is very much emerging subject. अभी हम इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे कंट्रीज में कैसे रिलेशन होना चाहिए, क्या डील्स फाइनल होनी चाहिए, क्या ट्रीटीज होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस से इसको इसलिए कनेक्टेड रहता है ये, क्योंकि आपको सारे पता होना चाहिए गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। तो पॉलिटिकल साइंस के थ्रू हमें गवर्नमेंट के लॉज और ड्यूटीज और सब पता चलता है, उनकी कैसी वर्किंग होती है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, गवर्नमेंट ने अगर कोई ट्रीटी साइन कर दी है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ये सारा चीजें हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस हमें कैसे मेंटेन करना है,
कौन जाएगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑल दीज कम्स अंडर इट. द पॉलिटिकल साइंस में यू कैन गो इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एज अ गवर्नमेंट भी आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो. अदरवाइज आप इंटरनेशनल एक जो अपना सिविल सर्विसेज के थ्रू आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए स्टडी कर सकते हो. वो एग्जाम क्लियर करके यू कैन बी इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑल्सो. आप WHO में भी वर्क कर सकते हो, यूनाइटेड नेशंस में भी वर्क कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक में काम कर सकते हो. देयर इज अ लॉट मच स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट. Hotel management and hospitality management, everybody is known nowadays. Hotel management is not only restricted. पहले से बोला जाता था कि अच्छा खाना बनाओगे, अच्छा खाना सर्व करोगे, क्या है उसमें बैरागिरी करोगे, ऐसे सब पहले आपको कमेंट्स मिलते हैं, सुनने को मिलते होंगे. बट नाउ यू नो द होटल मैनेजमेंट डजंट मीन, अगर आपसे कोई बोलता है ना ऐसा, तो आप उनको बोलो कि होटल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ खाना बनाना और खाना सर्व करना ही नहीं होता. होटल मैनेजमेंट मीन्स पूरा स्टाफ को मैनेज करना. अलग अलग फील्ड में आप जाते होगे होटल्स, तो आप देखते होगे ना कैसे हर चीज एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड रहती है. सो होटल मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द सिर्फ फूड बनाना ही नहीं है, इसमें कैटरिंग, आपका फूड, कटलरी, हाउस कीपिंग, एवरीथिंग कम्स अंडर इट. और इसमें आपको ट्रेन किया जाता है. नॉट ओनली यू कैन गो इन मीन्स लाइक ऐसे किसी होटल्स में, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द एयरलाइंस, रिजॉर्ट्स, और बहुत बड़े बड़े आजकल होटल्स आ रहे हैं सब जगह पे, 7 स्टार्स 8 स्टार. सो यू कैन हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी और दे पे ऑल्सो गुड. तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स. मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, अगेन ये जो डिग्री होती है इसमें आप जर्नलिज्म बन सकते हो, पब्लिक रिलेशंस के उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो. कंटेंट राइटर, आजकल हर जगह डिमांड है कंटेंट राइटर की और एडिटिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो पीपल आर लुकिंग फॉर इट. हर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट राइटर के बारे में एक अपना पोस्ट डालता रहता है कि वी आर हायरिंग फॉर दैट. एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, अपना खुद का इवेंट मैनेजमेंट चालू कर सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, कॉपी राइटिंग कर सकते हो. तो देयर इज अ लॉट मच स्कोप इफ यू आर गोइंग विद मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. और इसमें आप डेफिनेटली मीडिया में जा सकते हो. सो देयर इज अ लॉट मच स्कोप आने वाले टाइम में. एंटरटेनमेंट, सोशल मैसेजेस या न्यूज चैनल्स एंड ऑल, दे आर नेवर गोइंग टू स्टॉप. सो इसमें भी एक बहुत बड़ा करियर यू कैन चूज. इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज, हमने जो पहले इकोनॉमिक्स बात करा था वो कॉमर्स से रिलेटेड था. इकोनॉमिक्स अगर आप ह्यूमैनिटीज में भी अपना इकोनॉमिक्स ले सकते हो, एंड देन यू कैन वर्क इन अ बैंकिंग फर्म, रिसर्च फर्म्स, फाइनेंशियल फर्म्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में वर्क कर सकते हो. आपको यू नीड टू टेक अ मास्टर्स डिग्री इन इट, एंड देन ओनली इट इज वेरीफाइड एंड यू कैन वर्क इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सो आप मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो इकोनॉमिक्स लेके, आप कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजर बन सकते हो. सो देयर आर लॉट मच स्कोप इन दिस. डिजाइन, इफ आई टॉक अबाउट डिजाइन, तो डिजाइन मैंने कल भी बताया था कि डिजाइन का बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है. डिजाइन, अगर आप वाकई में क्रिएटिव पर्सन हो, अगर आपको एक्साइट करता है किसी भी चीज का डिजाइन, आपको ऐसा लगता है कि ये कार में मैं बैठा हूँ लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसा डिजाइन होना चाहिए था, या ये जो चीज मैं लेकर आया ना इसका अगर डिजाइन ऐसा होता तो शायद अलग ही इसका इम्पैक्ट होता, तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट. इसमें आपका लेआउट्स या स्केचिंग या ड्रॉइंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, आप कोई भी फील्ड ले सकते हो इसमें. यू कैन टेक्सटाइल डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, यू कैन बी अ फैशन डिजाइनर. पहले क्या लगता था डिजाइन करके सिर्फ सब लोगों के दिमाग में आता था फैशन डिजाइनिंग. अरे भाई, ज्वेलरी भी डिजाइन होती है, फुटवेयर्स भी डिजाइन होते हैं, आपका एक एक चीज, हर चीज का प्रोडक्ट डिजाइन होता है. एक छोटा सा पेंसिल बॉक्स भी ले जाते हैं उसका भी एक डिजाइन होता है. तो देयर इज अ लॉट मच स्कोप ऑफ डिजाइन. फॉरेन लैंग्वेजेस, अगेन अगर आप वाकई में किसी भी इसमें वर्क कर रहे हो और आपको अगर ऐसी 2-3 लैंग्वेज आती है ना, आपकी वैसे एक वो बढ़ जाती है, कद बढ़ जाता है कि अरे वाह ये इतनी सारी लैंग्वेज बोले. और फॉरेन लैंग्वेज डेफिनेटली आजकल ट्रांसलेटर्स चाहिए रहते हैं, है ना, क्योंकि आप गूगल में भी देखते हो ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है और आपसे पूछते हैं आपको कौन सी लैंग्वेज प्रेफरेबल है, तो वो कैसे करते हैं ना, तो उनको एक्सपर्ट्स चाहिए इस एरियाज में. तो अगर आपके पास लैंग्वेजेस का नॉलेज है, इफ यू हैव टेकन अ फॉरेन लैंग्वेजेस, तो आप ट्रांसलेटर या डिक्शनरी के जो मीनिंग्स, जो कंपिलेशन होता है वो बन सकते हो, फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक बन सकते हो, राइटर बन सकते हो. बहुत सारा एरिया है. अगेन इसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बंदे चाहिए रहते हैं कि जो कि क्योंकि अगर वो उनका ट्रेड है फॉरेन में, तो उनको चाहिए रहता है कि उनको एक ट्रांसलेटर चाहिए या उनको बता सके कि ये जो स्क्रिप्ट है ये क्या है. इवन द स्क्रिप्ट डिटेलिंग भी जो होती है उसके लिए भी फॉरेन लैंग्वेजेस का बहुत ज्यादा मान्यता है. यू कैन इवन वर्क विद द यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. कमिंग टू द करियर, sorry, this is
या साइकोलॉजी ओनली, नहीं सोशियोलॉजी, सॉरी आई एम नॉट एबल टू सी दैट। सो ये जो सोशियोलॉजी जो ये ब्रांच है, ये अगेन ये सोसाइटी के साथ में वर्क करते हैं, ये ग्रुप्स में वर्क करते हैं। तो जैसे कि मैंने जैसे कल बताया था, जिसने भी अटेंड किया हो, अगर आप साइकोलॉजी साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका ओरिएंटल स्टाइल क्या है। तो आप पीपल्स के उसमें वर्क कर सकते हो या ग्रुप्स में वर्क कर सकते हो। अगर आपका वाकई में ऐसा है तो यू कैन टेक दिस सब्जेक्ट। और इसमें जो स्ट्रीम है, आप साइंस स्ट्रीम से मतलब बीएससी सोशियोलॉजी से भी जा सकते हो और बीए सोशियोलॉजी से भी जा सकते हो। इसका बहुत ज्यादा स्कोप है आजकल। यू कैन बी अ मार्केट रिसर्चर, यू कैन बी अ मीडिया प्लानर, गाइडेंस, ह्यूमन रिसोर्स, और आप बहुत सारी अलग फील्ड्स में जिसमें सोशियोलॉजी का बहुत ज्यादा मानते हैं। इवन द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, दे आल्सो प्रेफर द सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स। सो हियर आल्सो अगेन योर स्कोप इज वेरी मच. So this is, I just want to again repeat, I don't know how many of you have studied, joined in. So I'm just telling you about the psychometric test. ये सब हम कैसे पता करते हैं कि किसमें क्या है, कौन से बच्चे में क्या इंटरेस्टिंग है, कौन से बच्चे में पर्सनालिटी क्या है। जैसे मैंने अभी बताया, ये सारी चीजें इनेट होती हैं जो कि हम डेवलप नहीं कर सकते। हम किसी का इंटरेस्ट, किसी का एप्टीट्यूड, किसी की एबिलिटी को, जैसे मेरे अंदर अगर मेरे को मैथ्स से बहुत ज्यादा घबराहट होती है, मैंने कभी मैथ्स मैं कभी नहीं कर पाई, तो वो मैं चाह के भी डेवलप नहीं कर पाऊंगी ना। सो दैट बिकॉज ऑफ मेरा अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है, मेरे अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है कि मैं मैथ्स को इजीली कर पाऊँ। मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर मैं सपोज मान लो अगर मैंने साइंस लिया होता तो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हो गया होता ना, मेरा टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो पता चला मैं 12th में पास ही नहीं हो पाती, या मेरे आते भी ग्रेड बहुत कम ऐसे आ जाते। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट ये जो होते हैं, ये यही मेजर करते हैं कि आपका माइंड और आपके अंदर क्या एबिलिटीज हैं। तो 5 डायमेंशंस पे जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स की जो रिपोर्ट होती है वो जनरेट होती है। दैट इज फर्स्ट इज ओरिएंटल स्टाइल, फिर आपकी इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड और EQ। इन सब चीजों के बेसिस पे आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जो कि 5 डायमेंशंस पे आपका होलिस्टिक रिपोर्ट तैयार करता है 34 पेजेस का, जिसमें डिटेल्ड रिपोर्ट होती है कि आपके अंदर क्या है, क्या डेवलपमेंट प्लान से रिक्वायर्ड होते हैं, आपको चाहिए, और क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं जिसमें आपको ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, और आपके क्या करियर पाथ हो सकते हैं। 5 करियर पाथ आपको 12th के बच्चों के लिए 5 करियर पाथ सजेस्ट किए जाते हैं। 10th के बच्चों के लिए स्ट्रीम सिलेक्ट करिए मतलब सजेस्ट की जाती हैं कि ये आपके लिए स्ट्रीम्स अच्छी हैं, और ये वाले बच्चों 12th वाले बच्चों के लिए 5 करियर पाथ ये सूटेबल हैं। तो दिस इज रियली वेरी गुड, और ये आपको पूरा होलिस्टिक रिपोर्ट देती है साइकोमेट्रिक असेसमेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट कम टू मी ओनली, बट इफ यू गेट एनीबडी एज अ चांस, प्लीज गो एंड टेक द साइकोमेट्रिक असेसमेंट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, आपकी हिडन एबिलिटीज, आपका इंटरेस्ट, आपकी स्किल, एवरीथिंग इज बीन नोन थ्रू द साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स। प्रीति मैम, हमने कल भी जैसे कल की ऑडियंस को बताया था ये कि हाउ लॉन्ग दिस टेस्ट टेक्स, और ये टेस्ट ऑनलाइन लिया जा सकता है या द पर्सन हैज टू कम फेस टू फेस। तो आई रियली वांट कि आप आज हमारी ऑडियंस को भी ये बताएं प्लीज। या ये मेरा पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे साइकोमेट्रिक सुन के, या पेरेंट्स जो होते हैं वो गूगल सर्च करते हैं साइकोमेट्रिक, और उनको बहुत सारे फ्री टेस्ट मिल जाते हैं इंटरेस्ट पे। वो एक और बात है मैम, एक तो उनकी वैलिडिटी नहीं होती है, आप वैलिड इंस्टीट्यूट से होना बहुत जरूरी है, और पूरे रिकॉग्नाइज्ड हों वो टेस्ट, तभी है। आप कोई भी अगर टेस्ट ले रहे तो वो एक ही डायमेंशन पे देते हैं। अगर आपको कहीं पे भी साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना पड़ेगा वो पेड होंगे, जो कि 5 डायमेंशंस पे आपको रिपोर्ट जनरेट 5 डायमेंशंस पे बताया ना, या है ना, 5 डायमेंशंस पे। और इसमें जो ड्यूरेशन जो होता है, जो मैंने अभी 5 डायमेंशन बताया उसी में, और ड्यूरेशन लाइक हम सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को 2-3 दिन में कंप्लीट करना है। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बिजी है या उसके एग्जाम्स है या कोई और है, तो विद इन अ वीक टाइम, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस ना हो इसलिए उसको विद इन अ वीक टाइम दिया जाता है। और हम सजेस्ट करते हैं उसको कि 2 या 3 दिन में उसको कंप्लीट करके दे दे। कई बच्चे होते हैं हमें 1 दिन में दे देते हैं, कई बच्चे होते हैं 2 दिन लगा देते हैं। तो दिस इज अ ड्यूरेशन, और इसमें कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है पूजा मैम। इट इज ऑल बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव। आपकी क्या सोच है उसके बारे में? मैं अपने ऑडियंस को जरूर बताना चाहूंगी कि प्रीति मैम ने हमारी रिक्वेस्ट पे जो टेस्ट प्रीति मैम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 5 डायमेंशंस, शी इज गिविंग अस डिस्काउंट फॉर द सेम। So if anybody wants to wait, Preeti ma'am, please just let us know a brief about this.
या सो वैसे तो इसका प्राइस 6,000 हो जाता है। अगर आप ये लेते हो तो आपको 5 डायमेंशन 34-36 पेजेस की रिपोर्ट जनरेट जो होती है, दैट रिपोर्ट विल गो टू यू ऑल्सो, जो आप उसको आगे अपने 12th तक रेफर कर सकते हो। फिर 12th में अगर आपको लगता है, अगर आप 10th में ले रहे हो तो आप 12th तक रेफर कर सकते हो। फिर 12th में आप करियर बेस ले सकते हो, और अगर आप 12th के हो तो आप उसको आगे फिर से लाइफ लॉन्ग वो आपके पास वो रिपोर्ट रहती है। बट ये होता है कि इंटरेस्ट बच्चे का चेंज होता रहता है, तो 2-3 साल में चेंज हो जाता है वो रिपोर्ट, मे भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि यू नीड टू टेक देन अगेन। एंड इसमें जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे आप जो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। उसमें पूरा आपको सजेशंस दिए रहते हैं कि आप कैसे अपने डेवलपमेंट प्लान्स पे वर्क कर सकते हो। इसमें आपका ये वीक एरिया है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कैसे उसको बढ़ा सकते हो, कैसे उसको और इसमें अच्छा वर्क कर सकते हो, ये सारे सजेशंस भी इसमें दिए रहते हैं। सो एंड देन उसमें फिर 45 मिनट्स की काउंसलिंग प्लस रिपोर्ट डिटेलिंग रिपोर्ट डिस्कशन विद द पेरेंट्स हम करते हैं। सो यस, आई रियली सजेस्ट कि one should take the psychometric assessment at the right time. Thank you so much, Preeti ma'am. We are so thankful कि आपने इतना elaborate करके हर stream के बारे में आपने इतना सब कुछ बताया. So this is Preeti ma'am's personal contact number and email ID. You can surely mail also to Preeti ma'am, and you can surely ping her up so that if you are having any query related to your child's career or related to any of the stream choices even, right, you can surely contact Preeti ma'am. Yeah. Thank you so much, Preeti ma'am, once again. I'm sharing, my dear audience, I'm sharing with all of you the links of certificate link, and then feedback link, and then psychometric form का भी link मैंने chat box में डाल दिया है। जो भी ऑडियंस साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना चाहते हैं, they can just fill up this form so that Preeti ma'am can contact with them. Thank you so much once again. Thank you so much, Sonia ma'am. Thanks, Preeti ma'am, for joining us. Thank you. My pleasure. Thank you, Preeti Fatela ma'am. You too, please. I really missed yesterday's session. I was actually occupied with another session, but I really missed it. Otherwise, it would have been a nice continuation for me for all the 3 days. Yeah, we will suggest the Abhi right now. Preeti ma'am, sorry, Pooja ma'am will share with us the. I'll share the video recording. So we'll yes. Thank you. It was a very enriching session indeed. Thank you. Enjoyed. Yeah. Thank you. So thank you so much once again, audience. We'll surely connect with all of you in our upcoming state webinar series on 22nd and 23rd. So I hope आप सब हमें वहां पे जरूर join करेंगे. We are coming up with English, Hindi, Punjabi, Science and SST secrets. So let's see वो secrets क्या है. We'll be revealing on 22nd and 23rd. Thank you so much once again to all of you. So we are taking your leave. Thank you so much. Thank you. Yeah, bye. Bye.